fully on the personality of Godhead residing within his heart. Perfect. There are three classes of transcendentalists, namely the Dhira, or one who is not disturbed by being away from family association. Number two, one who is in renounced order of life, a sannyasi by frustrated sentiment. And third, a sincere devotee of the Lord who awakens God consciousness by hearing and chanting and leaves home depending completely on the personality of Godhead who resides in his heart. The idea is that the renounced order of life, after a frustrated life of sentiment in material world, may be the stepping stone on the path of self-realization. But the real perfection of the path of liberation is attained when one is practiced to depend fully on the Supreme Personality of Godhead, who lives in everyone's heart as Paramatma. One may live in the darkest jungle alone, out of home, but a steadfast devotee knows very well that he is not alone. The Supreme Personality of Godhead is with him and he can protect his sincere devotee in any awkward circumstance. One should therefore practice devotional service at home, hearing and chanting the holy name, quality, form, pastimes, entourage, etc. in association with pure devotees. And thus this practice will help one awaken God consciousness in proportion to one's sincerity of purpose. One who desires material benefit by such devotional activities can never depend on the Supreme Personality of Godhead, although he sits in everyone's heart. Nor does the Lord give any direction to persons who worship him for material gain. Such materialistic devotees may be blessed by the Lord with material benefits, but they cannot reach the stage of first-class human being as above mentioned. There are many examples of such sincere devotees in the history of the world, especially in India, and they are our guides on the path of self-realization. Mahatma Vidur is one such great devotee of the Lord, and we should all try to follow in his lotus footsteps for self-realization. Om Ajnana-timirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam yena bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadhvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitanscha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Sapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Kacharine Nirvishesha Shunyavadi
पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। इतना कृपा बरसाने के लिए सबका बहुत धन्यवाद और सबसे आशीर्वाद की याचना। माता जी का विशेष स्वागत है। अति कृष्ण विजय। बहुत अच्छा लग रहा है। हम इस सुंदर कृष्ण अर्जुन मंदिर में आ रहे हैं। परम पूजनीय गोपाल कृष्ण महाराज जी का ये विजन था, ड्रीम प्रोजेक्ट, प्रभुपाद जी के सपने को पूरा करने के लिए। और इसको साक्षी गोपाल प्रभु जी इतने सालों से इसमें इतना परिश्रम कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही ये मंदिर खुलने वाला है। हरि बोल। केवल कुरुक्षेत्र में नहीं, हरियाणा में नहीं, भारत में नहीं, पूरे विश्व में रोमांच हो रहा है कब ये मंदिर खुलेगा। और प्रभुपाद जी का ये विजन है कि यहाँ से पूरे विश्व में गीता के संदेश का प्रचार हो। और ये बहुत बड़ी अपने आप में उपलब्धि है। और सारे जो मंदिर बनाने का मुख्य उद्देश्य है, श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं श्रवण और कीर्तन, ये हमारी संस्था का आधार है। और जितना भक्त लोग मिल के आपस में श्रवण कीर्तन करेंगे, परस्परानुकथनम पावनम भगवत यशा मिथोरति मिथो तुष्टि निवृत मिथ आत्माना। परस्परानुकथनम, बैठ के जब हम कथा करेंगे, भगवान का गुणगान करेंगे, क्या होगा? पावनम, हमें शुद्ध करे, भगवत यशा, भगवान का यशगान करने से। मिथोरति, आपस में प्रेम बढ़ेगा। मिथो तुष्टि, एक दूसरे से संतुष्टि मिलेगी। निवृत मिथ आत्माना, और हर कोई भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाएगा। तो ये मंदिर का मुख्य उद्देश्य है। इतना बड़ा हम मंदिर, इतना आकर्षण मंदिर क्यों बना रहे हैं? कि लोगों को आकर्षित करें। बिल्डिंग से तो लोग कुछ समय के लिए आकर्षित होंगे, लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर जो मुख्य बात मिल रही है श्रवण कीर्तन, वो उनके जीवन को परिवर्तन करेगा। ऐसे तो इस संसार में बहुत अच्छे बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, उसको देख कर लोग ऐसे कहेंगे वाह अच्छी बिल्डिंग है, लेकिन हृदय वही का वही रहेगा। लेकिन इस मंदिर में कोई प्रवेश करेगा, बिल्डिंग से भी आकर्षित होगा, यहाँ के श्रवण कीर्तन से भी आकर्षित होगा, भगवान से भी आकर्षित होगा, उसके हृदय में परिवर्तन होगा। और जो मंदिर में रह रहे हैं वो कितने सौभाग्यशाली हैं। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं मंदिर क्या है? वैकुंठ है। तो यहाँ वैकुंठ में रहने की प्रैक्टिस हो रही है। डिवोशनल सर्विस इन प्रैक्टिस। धाम में कैसे रहना चाहिए, मंदिर में रह के देखेंगे। तो मंदिर में हम सही ढंग से रह लेते हैं, क्लियर, सीधा वीज़ा मिल जाएगा। ये कि हम वैसी है, हमारा भी इंटरव्यू चल रहा है, क्लियर। कब होगा? जब इस मंदिर में रहना सीख जाएंगे, इस मंदिर के हमारा एक अच्छा समुदाय बनेगा। क्योंकि वृंदावन में जाएंगे, गोलोक धाम में जाएंगे, वहाँ भक्तों का समुदाय है। वहाँ कोई नहीं भगवान जरा अलग से आना, आपसे बात करनी, भक्तों का समुदाय, वहाँ सब इकट्ठे हैं। आज का श्लोक बहुत ही सुंदर श्लोक है। धन्यवाद देना चाहूँगा विष्णु तत्व प्रभु और निमाई निताई प्रभु को, बहुत सुंदर श्लोक उन्होंने चुना। तो ये प्रसंग है, विदुर जी आते हैं, विदुर जी तीर्थाटन पे निकलते हैं। हम जानते हैं कि विदुर जी का अपमान किया था दुर्योधन ने भरी सभा में, और बोला था इसी कपड़े में जो डाले में बाहर निकल जाओ, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। और विदुर जी का इतना अपमान, और विदुर जी प्रारंभ से ही हितैषी रहे, पांडवों के भी कौरवों के, वो हितैषी थे, वास्तविक हितैषी थे। तो जो गलत होता था वो बताते थे। तो दुर्योधन ये सहन नहीं कर पाया, दुर्योधन ने बहुत अपमान किया। देखिए विदुर जी की विशेषता देखिए, जब उन्होंने दुर्योधन ने अपमान किया तो विदुर जी ने इसको भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंदर लिया। ये नहीं लिखा कि दुर्योधन कली का सूचक है, कली का अंश है, तमोगुण रजोगुण में है, नहीं। इसने बोला ये भगवान की अंतरंगा शक्ति काम कर रही है। भगवान की इच्छा है अब मैं यहाँ से निकल जाऊँ और जाके क्या करूँ? साधु संग करूँ। तो विदुर जी एक महात्मा है, नरोत्तम जैसे बोला जा रहा है, विदुर जी एक नरोत्तम है। घर से बाहर निकल गए और घर से बाहर निकल के मैत्री मुनि का संग किया, उद्धव जी का संग किया, और फिर जहाँ से वो अपमानित हुए थे उन्होंने अपने हृदय में कोई दुर्भावना नहीं रखी कि उस घर तो वापस लौट के नहीं जाऊँगा, वहाँ मेरा इन्होंने अपमान किया है। जैसे कल में हम चर्चा कर रहे थे, भगवान एक भक्त के जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ लाते हैं कि उसका अपमान हो। जब अपमान होता है तो फिर वास्तविक विरक्ति आती है। जब तक लोग गुणगान किए जा रहे हैं, गुणगान किए जा रहे हैं, तो संसार बहुत अच्छा लगता है, फिर जानने की क्या जरूरत है, सब इतना गुणगान तो कर ही रहे हैं। जब अपमान होता है तो हमारी भगवान पर निर्भरता बढ़ती है, फिर भगवान ही एकमात्र आश्रय रह जाते हैं। तो भक्त मान और अपमान में मिश्रित नहीं होगा, ये हमारी ट्रेनिंग है यहाँ।
इस संसार की परिस्थितियों को हम नियंत्रित नहीं कर सकते क्योंकि परम नियंता भगवान है, लेकिन इस संसार की परिस्थितियों में हम किस प्रकार व्यवहार करते हैं, कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं, वो हमारे कंट्रोल में है। और कौन भक्त किस परिस्थिति में कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, इससे उस भक्त की परिपक्वता, मैच्योरिटी का मालूम चलेगा। विदुर जी ने कोई विद्रोह नहीं किया, चुपचाप वहाँ से निकल आए। और उसके बाद भी क्या देखिए, उन्हें बोला मेरा भाई धृतराष्ट्र अभी भी अज्ञानता में है, उसका मुझे उद्धार करना है। ये है करुणा, ये एक भक्त का हृदय होता है, इतना विशाल, इतना फॉरगिविंग, उसका उद्धार करना है। विदुर जी ना भी आते कोई दिक्कत नहीं थी। युधिष्ठिर वगैरह तो सोच चुके थे कि विदुर जी का तो अब पता नहीं देह त्याग चुके हैं। कोई व्हाट्सअप नहीं आता था, कोई फेसबुक पे अपडेट नहीं हो रहा था। आजकल तो साधु संतों के भी फेसबुक अपडेट, इंस्टाग्राम सब जगह मालूम चलता है कौन कहाँ पे है। लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था कि विदुर जी मालूम चलने बद्रिका आश्रम वहाँ मिल रहे हैं, हरिद्वार में उनसे मिल रहे हैं, मीटिंग हो रही है तो अपडेट होता जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई खबर नहीं है। इसका मतलब पता नहीं कहाँ है, हो सकता है गोलकगमन हो गया उनका। और जब विदुर जी वापस आए, युधिष्ठिर महाराज को ऐसा लगा पूरे इंद्रियों में उनका जीवन आ गया है। वाह, वापस जैसे किसी मृत व्यक्ति को जीवित देखने, एकदम बहुत रोमांच हुआ। और फिर विदुर जी का बहुत स्वागत किया। फिर विदुर जी अपने जिस उद्देश्य से आए थे, धृतराष्ट्र को खूब सुनाया उन्होंने, हितकारी वचन सुनाए। बोले क्या एक कुत्ते की तरह बैठे हो यहाँ पे, और देखो बुढ़ापा कैसा है, बूढ़े हो गए हैं लेकिन अभी भी जीने की इतनी उम्मीद है कि मैं जीता रहूँगा, जीता रहूँगा। देख नहीं रहे समय का क्या प्रभाव है, मुंह में दांत नहीं रहे, पेट में आंत नहीं रही, सर पे बाल नहीं रहे, और अभी भी जीने की इतनी आशा। जिसके लिए आपने इतनी कूटनीति रची, जिसको मारने का विष खिलाया, उसी भीम के दिए हुए अन्न पे पल रहे हो। इतने कड़वे वचन सुनाए, हिला दिया उन्हें एकदम धृतराष्ट्र को। और फिर बोला कि जो व्यक्ति, पिछले श्लोक में ऐसा बताया है कि जो व्यक्ति बुढ़ापा आने पे घर के सुख सुविधा को छोड़कर चला जाता है और उसका पता ही नहीं चलता वो कहाँ शरीर त्यागता है, उसको धीर कहते हैं। कि बुढ़ापे में घर से निकल गए और कहाँ जाके उसने शरीर छोड़ा, घर के सारे सुख को छोड़ दिया, और उसको धीर कहते हैं। लेकिन उससे भी उत्तम श्रेणी क्या है, जो आज के श्लोक में बताई है, या स्वकात परतो वेहा, या मतलब कोई भी, इट अप्लाइज टू एवरीवन। इस संसार का कोई भी व्यक्ति, भारतीय, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीकन, पुरुष, स्त्री, धनी, गरीब, कोई भी, या एनीवन, जनरल, कोई भी, स्व का, अपने आप, अपनी विवेक बुद्धि से, अपनी समझ से, पर तो या किसी के समझाने पर। जैसे स्वकात, पांडव, जैसे पांडवों को मालूम चला, अर्जुन ये समाचार लेकर आए दिवाकर से कि अब कृष्ण नहीं रहे, कृष्ण अपने धाम चले गए हैं, तो सभी पांडवों ने इंडिविजुअली प्लान बना लिया जाने का। किसी ने आपस में ईश गोष्ठी नहीं की कि युधिष्ठिर भाई अब क्या करना चाहिए, भगवान तो रहे नहीं। अपने आप युधिष्ठिर ने तुरंत योजना बना ली, रहने का फायदा ही नहीं, जब कृष्ण ही नहीं है, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद है। मतलब कि कोई सेकंड थॉट था ही नहीं कि इष्ट गोष्ठी कर रहे हैं, क्या करना है, कुंती माँ का क्या करेंगे, सुभद्रा का क्या करेंगे, द्रौपदी का क्या, कोई सोचा ही नहीं किसी ने। चुपचाप युधिष्ठिर निकल गया, और उधर भीम भी चुपचाप, बिना एक दूसरे को भी नहीं बताया। क्यों? वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि कृष्ण के बिना कोई जीवन संभव है। उनका पूरा अस्तित्व कृष्ण पर निर्भर है। और ऐसा नहीं है, कृष्ण के जाने के बाद इतनी निर्भरता थी। जब कृष्ण धराधाम पे थे तब भी पूर्ण रूप से कृष्ण पर निर्भर थे, आश्रित थे। कृष्ण उनके साथ रहते थे, फिर भी इतने कष्ट, एक बारी भी उन्होंने उलाना नहीं दिया, कृष्ण क्या कैसे भगवान हुआ, आपके साथ रहने का फायदा क्या हुआ, क्या करवा रहे हो, हद होती है। मतलब कि एक लिमिट होती है सहन करने की। हमारा ऐसा भक्त हो यही बोल देगा, प्रभु जी लिमिट होती है, हद होती है। मतलब कि इतना अपमान हर जगह, आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे, आप तो मजे ले रहे हैं आराम से। तो नहीं, कृष्ण के जाते ही सबने बोला अब जीवन है ही नहीं। युधिष्ठिर अलग, भीम अलग, अर्जुन अलग, नकुल सहदेव अलग, द्रौपदी सुभद्रा को भी नहीं बताया, वो भी अलग अलग निकल गए। तो स्वका, अपने आप ही उनके अंदर ये प्रेरणा मिली कि कृष्ण के बिना घर में नहीं रहना, निकलो। ओके, पर तो या फिर दूसरा समझाए, जैसे कि धृतराष्ट्र को समझाने के लिए विदुर जी आए। तो वाह, यानी कि यह इस भौतिक जगत में तो क्या होता है, जात निर्वेद। जब किसी के समझाने से या खुद ही समझ में आ जाए, जात ये उत्पन्न हो जाए, क्या, निर्वेद।
भौतिक आसक्तियों के प्रति क्या कहते हैं, इनडिफरेंस। बेकार है सब, ये सब बिल्कुल बेकार है। इस संसार की पावर, पोस्ट, पोजीशन, धन, स्त्री, ध्येय, आप्त कलादेशु आत्मसैन्यशु वसतपि तेषां प्रमतो निधना पश्यन्नपि न पश्यति। इस संसार में व्यक्ति इतनी मेहनत करता है इन सबको कमाने के लिए, बड़ा घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी के पेपर्स, व्हीकल्स, और हम आध्यात्मिक संस्था में हैं, पोस्ट, पावर, पोजीशन, फॉलोवर्स, इन पे हम आश्रित रहते हैं। लेकिन किसी के समझाने पे जब स्वतः ये विवेक उत्पन्न हो जाता है तो इन सब के प्रति इनडिफरेंस, उदासीनता आ जाती, सब बेकार है, ये सफलता के मापदंड नहीं है। तो क्या करता है फिर, जात निर्वेद आत्मवान फिर अपनी चेतना को क्या करता है, हृदय कृत्वा, अंदर की ओर ले जाता है। पहले वो सोचता है कि ये सब चीज़ें मुझे सुरक्षा प्रदान करेंगी। इस संसार में हर व्यक्ति भयभीत महसूस करता है, असुरक्षित महसूस करता है, उसके लिए इतना तामझाम रखता है कि मेरे आसपास लोग हों, मेरा कहना माने, मेरी प्रॉपर्टी हो, फ्यूचर ठीक रहे, बच्चे सब ऐसे रहें, इन सब पे हम निर्भर रहते हैं। लेकिन जब विवेक जागृत हो जाता है तो बोलते हैं सब बेकार है। फिर वो अपनी चेतना को हृदय के अंदर किसकी तरह ले जाते हैं, हरि, भगवान की ओर, परमात्मा की ओर। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं हमारे साथ नहीं जाएंगी और हरि हमेशा हमारे साथ जाएंगे। हरि ने, भगवान ने कभी हमें धोखा नहीं दिया, उनका एक नाम है अच्युत, और इस संसार में हमेशा धोखा ही मिलता है। तो इसलिए साधु बाबू एक बहुत सुंदर बात बता रहे थे अपने लेक्चर में, बड़ा अच्छा सिद्धांत बता रहे थे। बताते हैं इस संसार में जिन चीज़ों को हम अपना मानते हैं, ये आईफोन मेरा है, ये आईपैड मेरा है, ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये कुर्सी मेरी है, अगर ये सब चीज़ों को मैं अपना मानता हूँ लेकिन ये मुझे जानते भी नहीं है, मेरी जेब से मेरा आईफोन गिर जाएगा और रोएगा नहीं कि प्रभु जी के पास वापस जाना है मैं घर बेचूंगा, प्रॉपर्टी पेपर दूसरा साइन कराऊंगा तो प्रॉपर्टी पेपर से आंखों से आंसू नहीं निकले होंगे कि क्या कर रहे हो, मुझे मत दो यहाँ पे, मुझे ऐसा नहीं है। उनको वो जानते नहीं हम किसके हैं, वो हमारा, हम उनको अपना मान रहे हैं, है ना। और जो इस संसार के जीव हैं, भाई बहन, पति पत्नी, फॉलोअर्स, जिसको मैं अपना मानता हूँ, तो प्रभु जी बहुत सुंदर बात बताए थे, वो हमें पहचानते नहीं। कब पहचानते हैं, जब हम शरीर छोड़ देते हैं, तब बोलते हैं वो चले गए, लेकिन तब पहचाने जो थे वो तो चले गए तो जिन चीज़ों से हम आसक्त हैं, भौतिक चीज़ों से, वो हमें जानते नहीं हैं, और जिन जीवों से हम आसक्त हैं वो हमें पहचानते नहीं हैं। लेकिन भगवान हमें जानते भी हैं और पहचानते भी हैं, तो उनके साथ रहना चाहिए, उनके साथ आसक्ति करनी चाहिए। हर संसार में बहुत से ऐसे निकट संबंधी होंगे जो आपको गलत समझ जाएंगे। कितने भक्तों का ऐसा अनुभव है कि किसी ने आपको गलत समझा, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है निकट के संबंधों में, बड़ा दुख होता है कि मुझे समझा ही नहीं यार, इतने साल बिता दिए फिर भी नहीं समझे। लेकिन भगवान एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी किसी को गलत नहीं समझते, क्योंकि हमारे सब कुछ वो जानते हैं। तो क्यों ना जब ये विवेक जागृत हो जाता है स्वतः ही या किसी के समझाने पे, तो व्यक्ति सोचता है ये सारा संसार की चीज़ें बेकार हैं, मुझे अपनी चेतना को अब भगवान की ओर उन्मुख करना है। हृदय कृत्वा हरिम, और फिर क्या करना है, गेहा प्रवजेत नरोत्तमा, फिर वो घर छोड़ देता है। बोले अब मेरा एक छोटा सा घर नहीं है, पूरा संसार मेरा घर है। क्यों? पूरा संसार किसका है? ठाकुर जी का है। ठाकुर जी मेरे हैं और संसार ठाकुर जी का। कितना बढ़िया कंसेप्ट, आप सोचिए, छोटा घर छोड़ के पूरा संसार मेरा घर है। जो सुखदेव गोस्वामी जी भ्रमण करते थे पूरे संसार में, दिगंबर भ्रमण कर रहे हैं, पूरा संसार उनका घर है। प्रभुपाद जी कहते हैं हमें कहीं टिकट वीज़ा की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए सारा संसार हमारा घर है। हर जगह प्रभुपाद जा रहे हैं, आराम से मां कथा कर रहे हैं, एक घर छोड़ा पूरे संसार को घर बना लिया। बताइए अच्छा सौदा है कि नहीं है? एक घर होगा आपका 500 गज का, उसकी प्रॉपर्टी होगी खाली, उसको छोड़ दो तो पूरा संसार आपका घर है। क्यों? कैसे? भगवान पे पूर्ण रूप से निर्भर रहना, ये विशेष बात है। घर छोड़ना एक मुख्य बात नहीं है,
विशेष रूप से डिपेंड्स फुली ऑन कृष्णा, वो नरोत्तम है। जो पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर रहकर रहता है वो कौन है? नरोत्तम। राइट, कितना सुंदर वो है। अगर ये श्लोक हम सब समझ जाएं तो सारी प्रॉपर्टी की रेट्स डाउन हो जाएंगे सब घर छोड़ के चले जाएंगे तो घर खरीदेगा कौन? सब बोलेगा बेकार है, ये घर क्यों चाहिए, हमें पूरा संसार ही हमारा घर है, यहाँ घूमेंगे। तो वास्तव में हमारे आंदोलन का मिशन ही क्या है? बैक होम बैक टू गॉड, वो असली कार्य। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि 3 श्रेणी के ट्रांसडेंटलिस्ट हैं या योगी हैं। पहला है धीर। धीर वो व्यक्ति है जिसने पूरा जीवन कोई भक्ति नहीं की, लेकिन अंतिम समय में अपने आप या किसी के समझाने पे, जैसे धृतराष्ट्र है, वो घर के आराम को छोड़कर जंगल में चला जाता है। उसके अंदर ऐसा वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, उसको बोलते हैं धीर। दूसरा है सन्यासी, जो कि संसार से कुंठित होकर सब बेकार है छोड़ के चला जाता है। लेकिन नरोत्तम वो है जो भगवान का श्रवण कीर्तन करता है और इस अमृत का पान वो खुद भी करता है और इस अमृत को पूरे विश्व में बांटने के लिए घर छोड़ के निकलता है। वो कौन कहलाता है? नरोत्तम। राइट। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ऐसे संसार में बहुत से उदाहरण हैं। विदुर जी ऐसे उदाहरण हैं, श्रील प्रभुपाद खुद एक ऐसे उदाहरण हैं, पांडव ऐसे उदाहरण हैं। तो हम में से कितने लोग नरोत्तम बनना चाहेंगे? अरे ये हमारे जीवन का लक्ष्य है, हमने नरोत्तम बनना है। प्रभुपाद कहते हैं एक तरफ नरोत्तम है और भगवद गीता में एक और शब्द यूज़ करते हैं भगवान, नराधम। नराधम वो है कि जो घर में ही आसक्त रहता है और इसी संसार को सुखी बनाने के लिए सारी योजनाएं बनाता है, तो वो क्या है? नराधम है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं 99.99% लोग कौन हैं? नराधम। लेकिन प्रभुपाद जी ने संस्था बनाई है हमें नरोत्तम बनाने के लिए। अब चॉइस हमारे पास है, हमने बनना है कि नहीं बनना। सुविधाएं पूरी हैं, घबराइए मत। कुछ लोग सोचें घर छोड़ना पड़ेगा, नहीं। तो प्रभुपाद आगे तात्पर्य में समझा रहे हैं कैसे हम नरोत्तम बन सकते हैं। तो ये श्लोक है कि या स्वकात परतो वेह जात निर्वेद आत्मा। इसी प्रकार का एक श्लोक हम देखते हैं प्रहलाद महाराज के प्रसंग में आता है। जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद महाराज से पूछते हैं क्यों, कहाँ से तुम्हारे पास ये भक्ति आ गई? स्कूल में तो कोई वैष्णव आता नहीं, कहाँ से ये सब बातें सीख ली? तो क्या बोलते हैं? मति न कृष्णो परतो स्वतो वा मिथा अभिग्रहत्वतानाम अदांत गोभे विष्टे तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वनाना। वो बिल्कुल उल्टी बात बोलते हैं। वो बोलते हैं मति, कृष्ण में मति ना तो खुद लग सकती है ना किसी के बताने पे लग सकती है। यहाँ पे बता रहे हैं खुद या किसी के बताने पे वैराग्य आ जाए। तो बोले मति जो है कृष्ण में ना तो खुद लगती है ना किसी को उसमें होती है। और विशेषकर जो ग्रह व्रत हैं, जिन्होंने दृढ़ व्रत ले लिया है कि मैं घर में ही रहूँगा, वो तो भगवान को समझ नहीं सकते। तो फिर कैसे समझेंगे? फिर अगले श्लोक में बताते हैं नेशामति तावत उरुक्रियम आंघ्रिम स्पर्शते नर्तुपगम यथा यदार्थम महीयसां पाद्रजोभिषेकम निष्किंचिनानाम यावत् वनिर्नर। कि जब हम निष्किंचिन भक्तों के पद रेणु से अपना अभिषेक करेंगे तब मति जो है कृष्ण में लगती है। तो यहाँ विदुर जी के कहने पर धृतराष्ट्र ग्रह व्रत से धीर बना। धृतराष्ट्र नरोत्तम नहीं बने, धृतराष्ट्र परम भक्त नहीं बने, धृतराष्ट्र क्या बने? धीर बने। अंतिम समय में उन्होंने छोड़ दिया। तो ये मुख्य बात है भगवान पर निर्भरता, भगवान का आश्रय ग्रहण करना। ओके। और हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में ऐसे बहुत से प्रसंग हैं जिसमें हमें सिखाया जा रहा है कैसे भगवान पर निर्भर रहना चाहिए। भागवतम में सिखा रही हमें कोई भी सेवा मिलती है उस पर हमें पूरे निर्भर रहकर करना चाहिए। भागवतम के पहले स्कंद में पहले अध्याय में शौनकादि ऋषि सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न पूछते हैं और जब दूसरे अध्याय में सूत गोस्वामी इसका उत्तर देना शुरू करते हैं तो पहले वो क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, सुखदेव गोस्वामी का गुणगान करते हैं। या स्वानुभावम अखिल श्रुति सार एकम अध्यात्म दीपम अतितिर्षिताम तमोंधम संसारिणाम करुणया परम गुह्यम तम व्यास सूनम उपयामि गुरु मुनीनाम। तो वो व्यास सूनम, उस व्यास के पुत्र को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने इस अखिल श्रुति सार एकम इस ग्रंथ को
आपने आत्मसात किया है और संसार पे करुणा करने के लिए इसको बोला है। तो पहले उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम किया, फिर चौथे श्लोक में नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम वेदव्यास जी को प्रणाम किया और फिर उन्होंने उत्तर देना शुरू किया। इसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी जी से जब परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं दूसरे स्कंद में, तो पहले वो व्यास जी का पूरा गुणगान करते हैं और बोलते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं कि भगवान जिस प्रकार से आपने इस सृष्टि के एक एक तत्व को की रचना की है, उसी प्रकार आप मेरे हृदय को और मेरी वाणी को भी सुशोभित कर दीजिए। इसी प्रकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी 90 वर्ष की आयु में, आप वो सोचिए, उनके हाथ कांपने, दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा, इतना सुंदर ग्रंथ चैतन्य चरितामृत कैसे सब कृपा से पूर्ण रूप से कृपा बनेगा। भगवत गीता के पहले अध्याय के लेक्चर्स में प्रभुपाद जी बताते हैं कि अर्जुन के रथ पर कपिध्वज था, हनुमान जी थे, और प्रभुपाद कह रहे हैं इससे मालूम चलता है कि जो अर्जुन है पूर्ववर्ती आचार्य हनुमान जी की कृपा पर निर्भर था सफलता के लिए। तो भक्ति का जो सार है वो कृष्ण पर निर्भरता है, ये जीव गोस्वामी जी भक्ति संदर्भ में समझाते हैं। और जितना हमारी कृष्ण पर निर्भरता बढ़ती जा रही है उतनी हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। भक्ति में सफलता बाहरी परिणामों से नहीं है, बाहरी परिणाम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। असली सफलता है अपने अंतःकरण में मैं कृष्ण पे कितना निर्भर हो रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद जी ने कितना संघर्ष किया, लेकिन दिन प्रतिदिन प्रभुपाद जी की निर्भरता, डिपेंडेंस कृष्ण पर बढ़ रही है, वो सफलता है। हो सकता है बाहरी रूप से बहुत सफलता मिल रही हो और आंतरिक रूप से मैं सोच रहा हूँ देखो मैं कितना अच्छा भक्त हूँ, क्या मेरे पास सब कुछ है, तो आपकी निर्भरता कम होती जा रही है। तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं। लोग बोलेंगे आप बहुत अच्छे भक्त हैं, आपने तो कमाल कर दिया, तूफान मचा दिया, विस्फोट कर दिया आपने तो। लेकिन मैं आंतरिक रूप से भगवान पे मैं निर्भर नहीं हूँ, गुरु और कृष्ण की कृपा पर निर्भर नहीं हूँ, तो मेरा पतन हो रहा है। और हो सकता है बाहरी रूप से सफलता नहीं मिल रही, लेकिन मैं आंतरिक रूप से गुरु और कृष्ण पर निर्भरता बढ़ती जा रही है, वो मेरी सफलता है। तो भक्ति राज विद्या राजगुरु, इसलिए किसी भी भक्त को जज करना खतरा मोल लेना है। इसलिए सारे भक्त आदरणीय हैं, वंदनीय हैं। ये हम लोग अक्सर बाहरी रूप से चलते हैं बस। ओके, इसी ढंग से हम देखते हैं कोई भी हम सेवा प्रारंभ करें तो पूर्ण रूप से कृपा पर निर्भर रहते हुए करना चाहिए। तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय में ब्रह्मा जी को जब सुबह सुबह उठते हैं तो बड़े परेशान हो जाते हैं। गर्भोदक सागर में बड़ी बड़ी तूफान की लहरें उठ रही हैं, चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है, समझ नहीं आ रहा क्या करना है। हम सुबह सुबह उठें और ऐसा वातावरण हो, हम तो सौभाग्यशाली मंगल आरती चाहते हैं, तूफान ही तूफान मचाओ, कुछ कोई नज़र नहीं आ रहा। तो कैसा, ब्रह्मा जी पहले जीव हैं, सारी सृष्टि का तो प्रलय हो गया, सुबह उठ के दोबारा से सृष्टि करनी है, वो ऐसा सीन होता है। और फिर भगवान तप बोलते हैं, वो तप करते हैं, फिर भगवान को दर्शन देते हैं, फिर भगवान की वो सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं। और उस प्रार्थना में मुख्यतः 2 बातें वो कहते हैं कि आप मुझे शक्ति प्रदान कीजिए जिससे मैं सृष्टि की रचना कर सकूं, और दूसरी मेरी रक्षा कीजिए कि मैं कभी ये भूल ना जाऊं कि सृष्टि करने वाले वास्तव में आप हैं, मैं नहीं, अपने आप को करता ना मान। तो जब भक्त ऐसी प्रार्थना करता है तो उसको फिर बहुत कृपा प्राप्त होती है। प्रभुपाद जी कहते हैं जब कृष्ण और गुरु की कृपा प्राप्त होती है तो बड़ी चमत्कारिक परिणाम होते हैं, कुछ भी हो सकता है ना, बियॉन्ड इमेजिनेशन है। और अगर हम सेवा केवल अपनी शक्ति पर निर्भर होकर करेंगे तो सीमित सेवा होगी, लेकिन अगर हम गुरु और कृष्ण की कृपा पर निर्भर होकर सेवा करेंगे तो चमत्कार होंगे। इसीलिए कृष्ण की कृपा पर निर्भर रहना सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है ना। हाईएस्ट इंटेलिजेंस इज टू डिपेंड ऑन कृष्ण, सबसे बड़ी बुद्धि वो है। लेकिन हम बोले नहीं जी मैं अपने पर निर्भर रहूँगा तो कुछ समय कुछ परिणाम आएंगे सीमित। ब्रह्मा जी ने देखी कितना चमत्कार, कैसे सृष्टि की रचना कर दी। तो जब भी हमें कोई सेवा मिलती है तो तरह तरह के अलग अलग साधक उस सेवा को अलग अलग रूप से ले सकते हैं। पहला साधक होगा जिसका बिल्कुल आदर्श एटीट्यूड है, आदर्श मनोवृत्ति है, वो सेवा को ही आशीर्वाद मानेगा और जानता है कि सेवा और मैं स्वयं, वी ऑल आर ब्लेस्ड, हम दोनों को आशीर्वाद प्राप्त है।
और ये नहीं अपेक्षा करेगा कि मैं सेवा कर रहा हूँ तो मुझे कुछ रिटर्न में मेवा मिलेगा। सेवा अपने आप में मेवा है। मुझे सेवा करने का अवसर मिल रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ओके, ये तो है आदर्श मनोवृत्ति, पहला साधक। दूसरा साधक हो सकता है कि उसको बड़ी सेवा मिली, वाह क्या बात, कमाल की बात है, मुझे गुरु महाराज ने चुना है सेवा के लिए, ही इज़ फीलिंग वेरी प्राउड। देखा, मुझे ही चुना गया सब कुछ और अब मैं करके दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। डूअरशिप मेंटेलिटी रहेगी, उसको अहंकार होगा। तो ऐसे जब वो सेवा करेगा तो क्या परिणाम होगा? फ्रस्ट्रेशन, उसको कुंठाई प्राप्त होगी। बड़ा प्राउड है कि मैं करूँगा, ये नहीं, फ्रस्ट्रेटेड। तीसरा होगा, नहीं नहीं नहीं, मैं इस योग्य ही नहीं हूँ सेवा करने के, मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ प्रभु जी, मैं तो घास का तिनका भी नहीं हूँ, इतनी बड़ी सेवा मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। कोई ऐसा कर रहा है, ये भी फॉल्स ईगो है। इसका मतलब उसको गुरु और कृष्ण की कृपा पर विश्वास नहीं। परम पूजनीय जयप्रकाश स्वामी महाराज जब 21 साल के थे, श्रील प्रभुपाद उनको मायापुर में लाए, पूरी ज़मीन दिखाई, बोले नाउ इट्स योर्स, टेक इट, डेवलप इट एंड एन्जॉय इट। प्रभुपाद क्या कह रहे हो, मैं बच्चा हूँ अभी, 21 साल का ही क्या है, आप बताओ। नया नया कोई आया यहाँ पे, बोले चलो ये पूरा प्रोजेक्ट डेवलप करो। मैं क्या करूँ प्रभुपाद, मैं बच्चा हूँ। प्रभुपाद कहते दिस इज़ बॉडीली कॉन्शियसनेस, मैं बच्चा हूँ, मैं ये हूँ, करो और देखिए कमाल हुआ। तो अगर भक्त ये बोले नहीं 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 नहीं, ये मेरी नेचर के अनुसार नहीं है, मेरी प्रवृत्ति कुछ और है, भक्ति वर्णाश्रम से ऊपर है। हो सकता है आप आपकी प्रवृत्ति के अनुसार ना हो, जो सेवा मिल रही है उस सेवा के साथ हमें शक्ति भी मिलती है। तो ऐसी कोई सेवा मिलती है जो हमारे लिए करना बहुत मुश्किल है, और कोई भी सेवा आ रही है अगर अधिकृत तरीके से, तो उसको मना नहीं करना। ये कृपा पाने का बहुत सुंदर अवसर है, उसको पाना है कृपा के रूप में, और शक्ति मिलेगी और चमत्कार होगा। तो इस प्रकार से भक्ति में हमेशा ही सफलता है, भक्ति में कभी फेलियर है ही नहीं। क्यों? अगर बाहरी रूप से सफलता नहीं मिल रही, हम और निर्भर होंगे। प्रभुपाद जी कितने निर्भर थे कृष्ण पे। पहले रूप गोस्वामी जी राधा दामोदर मंदिर में इतना क्रंदन करते थे, फिर विदेश जाने से पहले शांतिपुर में अद्वैताचार्य भवन में जाकर इतना क्रंदन किया। पूर्ण रूप से कृपा पर निर्भर है। इसी ढंग से चैतन्य भागवत में हम प्रसंग पढ़ते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य जी के घर से जगन्नाथपुरी जा रहे थे सची माता के कहने पे, तो जा रहे थे उनके साथ जगदानंद पंडित थे, मुकुंद थे, नित्यानंद थे। तो जाते जाते महाप्रभु ने पूछा उनसे, आप कुछ रास्ते में के लिए लेकर तो नहीं चल रहे? महाप्रभु उनकी परीक्षा ले रहे। सबने बोला कैसे महाप्रभु, बिना आपकी आज्ञा के हम कुछ ला सकते हैं? महाप्रभु बहुत पसंद हुए। आदत होती है ना, हम भक्त लोग कहीं जाते हैं साथ में जर्नी प्रसाद लेकर चलते हैं, है ना। तो महाप्रभु ने बोला कोई जर्नी प्रसाद लेकर नहीं चला। महाप्रभु के स्टैंडर्ड बहुत ऊंचे थे कि आप चल रहे हो कोई जर्नी प्रसाद में, बोले अगर भगवान की इच्छा होगी तो हमें खिला देंगे, भगवान की इच्छा होगी तो नहीं खिलाएंगे। फिर महाप्रभु बहुत विस्तार में समझाते हैं। हो सकता है कोई राजा का ही बेटा क्यों ना हो, सारे 56 भोग तैयार हों, लेकिन फिर भी वो ना खा पाए, उसका किसी से झगड़ा हो जाए, उसका मूड खराब हो जाए, मैं नहीं खाता मेरा मूड खराब है या उसको कोई रोग हो जाए, नहीं खा पाएगा। तो भगवान कहते हैं कि जिसको खिलाना होगा, अल्टीमेट देने वाले कौन हैं? कृष्ण। और बहुत सुंदर वहाँ पे श्लोक आता है कि भोजनाश्च चादने चिंता वृहा कुर्वन्ति वैष्णवयो असो विश्वमरो देवा साकिं भक्तान उपेक्षता। जो वैष्णव होते हैं वो अनावश्यक चिंता नहीं करते, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, कपड़े मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो पूर्ण रूप से कृष्ण पर निर्भर हैं, जिनका एक नाम है विश्वम्भर। विश्वम्भर जाने की जो सबकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसलिए डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, कृष्ण पर निर्भर रहना चाहिए। जब हम कृष्ण पर निर्भर रहते हैं तो कृष्ण कभी धोखा नहीं देंगे। और जो कृष्ण पर निर्भर रहता है और आगे बढ़ता है उसी को नरोत्तम कहते हैं। हम देखते हैं प्रहलाद महाराज के जीवन में पूर्ण रूप से कृष्ण पर निर्भर है। उन्होंने हिरण्यकश्यप को भी अपना शत्रु नहीं माना, और हिरण्यकश्यप पूर्ण रूप से अपनी शक्तियों पर निर्भर है।
क्या शक्ति थी हिरण्यकश्यप के पास, ऐसी शक्तियाँ आ गई थी, पूरे प्रकृति के नियम बदल दिए थे। जो पाप कर रहे हैं उनको स्वर्ग में, जो पुण्य कर रहे हैं उनको नर्क में, सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया था। सूर्य को बोलता है यहाँ गर्मी आई, ठंडे हो जाओ, ठंडा हो जाता था। इंद्र को बोलता है बारिश करो, बारिश करता था। सारे देवता उसकी नौकरी चाकरी करते थे। इतना कुछ होने के बाद भी क्योंकि अपनी पूरी शक्तियों पर निर्भर था, हमेशा डरा रहता था, हमेशा परेशान रहता था। और प्रहलाद महाराज 5 वर्ष के मासूम बालक पूर्ण रूप से नारद मुनि जी की कृपा पे और कृष्ण की कृपा पर निर्भर हैं, बिंदास रहते थे। हिरण्यकश्यप परेशान हो गया, ये व्यक्ति है कौन है, उसको इतना भय हो गया, बोले ये मेरी मृत्यु का कारण बनने वाला है। मैंने इतना मारने का प्रयास किया, मर ही नहीं रहा, बोले ये मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। भगवान ने बोला सत्य वचन सत्य विदात जो भी सत्य करेंगे। तो ये अन्यत्व की भावना हमने विकसित करनी है। अगर हम कृष्ण पर निर्भर हैं तो पूर्ण रूप से निर्भीक हो जाएंगे। लेकिन आप बोलेंगे निर्भर होने में भय लगता है, इसलिए भगवान कह रहे हैं माँ शुचा। प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं डोंट वरी, डोंट फियर, डोंट हेजिटेट, 3 बार लिख रहे हैं। फिर भी हमें डर लगता है कि पता नहीं क्या हो जाए। भगवान है ना, परम पूजनीय भक्ति चारण महाराज जी को उदाहरण देते थे कि भगवान भक्तों के साथ कई बार खेलते हैं। जैसे पिताजी बच्चे के साथ खेलते हैं ना, छोटे बच्चे को ऊपर हवा में फेंकते हैं, है ना, और बच्चे को भी अच्छा लगता है। ऊपर हवा में फेंकते हैं, बच्चा हंसता है और हंसते हुए नीचे आता है। क्यों हंसते हुए नीचे आता है? उसको पूरा विश्वास है पिताजी पकड़ लेंगे। अगर मान विश्वास ना हो कि पिताजी पकड़ेंगे, वो तो हंसते हुए थोड़ी जाएगा, रोते हुए आएगा भी गिरा नीचे। उसको पूरा विश्वास है पिताजी ऊपर फेंक रहे हैं, नीचे ही पकड़े हैं, मैंने और ऊपर फेंक, और जोर से ऊपर फेंकते हैं और हंसते हुए नीचे आते हैं। इसी ढंग से कई बार भक्तों के साथ भगवान उछालते हैं उसको, लेकिन हमें डर लगता है कि भगवान नीचे खड़े हैं कि नहीं खड़े पकड़ने वाले। तो भगवान कभी भी नहीं छोड़ेंगे, हमें पकड़ के रखेंगे। तो पूर्ण रूप से हम निर्भर हैं, चाहे हम किसी भी आश्रम में हैं। ये जो भय है ये हमारी देहात्म चेतना के कारण आता है। भयम दित्वा अभिनिवेशेत स्यात्। जितना हम देहात्म चेतना में होंगे उतना हम भयभीत रहेंगे। हम देखते हैं सनातन गोस्वामी जी जब ईशान के साथ निकले थे, ईशान के पास 8 सोने के सिक्के थे। जब उन्होंने 7 के 7 दे दिए उस गेस्ट हाउस के मालिक को, फिर भी सनातन गोस्वामी ने पूछा आपके पास एक सिक्का और भी है क्या? बोले हाँ। कहले चले जाओ वापस, है ना। बोले कालयम है, ये जो धन है क्या है? कालयम है, मृत्यु लेकर आएगा, मृत्यु की घंटी है। तो पूर्ण रूप से वो भगवान पर निर्भर, तब वो निर्भीक होकर आगे निकले। तो कोशिश इमेजिन कीजिए कि हमारे मन में कोई भय ही नहीं है। अर्जुन गीता के पारा में बहुत भयभीत था, रो रहा था, और बाद में क्या बोला? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादात् मयि उच्यते स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। ऐसी भावना हमारे में आ जाए, कोई मोह नहीं है, कोई संशय नहीं है, कोई भय नहीं है, क्या जीवन होगा? कैसे हुआ? भगवान पे पूर्ण रूप से निर्भर होगा। तो अगर हम पूर्ण रूप से निर्भर नहीं हैं तो क्या होता है? डर होता है। और उस डर को छपाने के लिए, डर से बचने के लिए फिर हम कूटी नाती लगाते हैं, राजनीति करते हैं, इधर उधर करेंगे, कुछ झूठ बोलेंगे, क्योंकि डर है। अगर डर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। डर क्यों है? भगवान पे पूर्ण निर्भरता नहीं है, और भगवान पे पूर्ण निर्भरता नहीं है तो फिर भक्ति का क्या लाभ है? भक्ति का मुख्य सार है भगवान पे निर्भरता। तो कैसे भक्ति कर रहे हैं? तो अपनी निर्भरता को बढ़ाना है। अब प्रश्न उठ सकता है कि इस संसार में अगर हम किसी पे मोहताज हो जाएं, कोई भी मोहताज बनना नहीं चाहता, हर कोई बोलता अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता। आजकल है ना यही चल रहा है, सब हर कोई स्वतंत्र रहना चाहता है, कोई किसी से निर्भर रहना नहीं चाहता। लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं डिपेंडेंस ऑन कृष्णा इज द हाईएस्ट परफेक्शन, हाईएस्ट अचीवमेंट, हाईएस्ट फॉर्चून। कृष्ण पर निर्भर रहना सबसे बड़ा सौभाग्य है, सबसे बड़ी उपलब्धि है, और सबसे बड़ी सिद्धि है, सबसे बड़ी बुद्धि है कृष्ण पर निर्भर रहना। तो कैसे किया जाए? क्योंकि अगर हमें भगवत धाम जाना है
तो ब्रजवासी पूर्ण रूप से कृष्ण की कृपा पर निर्भर है। भगवान ने बोला इंद्र का यज्ञ बंद कर दो, और भगवान ने पूरा कर्म मीमांसा सिद्धांत समझाया। तो ब्रजवासी कर्म मीमांसा फिलॉसफी से कन्विंस नहीं हुए, कृष्ण के प्रेम के कारण। चलो ये कह रहा है, बच्चा कह रहा है तो बंद कर देते हैं। उनको कोई फिलॉसफी समझ में नहीं आ रही थी कि कर्म मीमांसा सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है। ओके, तो उनको कोई फिलॉसफी समझ में नहीं आ रही थी, केवल प्रेम के कारण। और बाद में भुगतना ही पड़ा उनको। कितना मतलब कि इंद्र ने समर्थक बादलों की बरसात कर दी। तो लेकिन भगवान ने रक्षा की। ऐसा नहीं है कि सब ब्रजवासी नंद महाराज के घर के बाहर इकट्ठे हो गए, गालियाँ निकालने लगे, तुम्हारे बेटे ने क्या करवा दिया। आज की दुनिया में ऐसा ही होता ना, छोटे बालक की बात मान ली, मरवा दिया इसने। ऐसा नहीं, सबको कृष्ण पूरा विश्वास था कि हमारी रक्षा करेंगे। तो ब्रजवासी मतलब कि ब्रज का मतलब होता है चलना। कैसे चलना? कृष्ण की योजनाओं के अनुसार चलना। तो अगर हमने ब्रजवासी बनना है तो हमें क्या बोलना पड़ेगा? कृष्ण की योजना के अनुसार चलना है। तो कैसे चला जाए, ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? तो कॉन्फिडेंस आएगा जितनी मात्रा में हम गुरु साधु शास्त्र के अनुसार जीवन चलाएंगे। भगवान कभी धोखा नहीं देंगे। लेकिन फिर भी गुरु साधु शास्त्र के अनुसार चलने के लिए भी बड़ी हिम्मत चाहिए। हमें पता होता है ये ठीक है, फिर भी डर के कारण हम नहीं कर पाते। तो 4 चीज़ें हैं जो हमें हम मदद कर सकती हैं कृष्ण पे निर्भरता बढ़ाने के लिए। पहले तो हम इसका एनालिसिस करें। 2 प्रकार के केस हैं। एक में ये है कि मैं नियंता हूँ, और एक में ये मानसिकता रखनी है कि कृष्ण नियंता है। ओके, अगर हमें सफलता मिलती है और मैं इस मानसिकता हूँ कि मैं नियंता हूँ, तो क्या होगा? अहंकार बढ़ जाएगा। और अगर ये मानसिकता है कि कृष्ण नियंत्रण है और मुझे सफलता मिलती है, तो क्या होगा? कृतज्ञता है, कृष्ण से और प्रेम बढ़ेगा। अच्छा, अगर मुझे विफलता मिलती है और ये मानसिकता है कि मैं नियंता हूं, तो क्या होगा? क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन होगी, डिप्रेशन होगा, द्वेष आएगा, उसको क्यों सफलता मुझे क्यों नहीं मिली। और मुझे विफलता मिल रही है और ये मानसिकता है कि कृष्ण नियंत्रण में है, तो क्या होगा? हेल्पलेस हो जाऊंगा और मेरी निर्भरता बढ़ेगी। राइट। अच्छा, अगर बहुत चुनौती वाली स्थिति है और मैं सोच रहा हूं कि मैं नियंता हूं, तो क्या होगा? परेशान हो जाऊंगा, स्ट्रेस हो जाएगा, एंग्जाइटी हो जाएगी, दवाइयां खाऊंगा। और बहुत चुनौती वाली परिस्थिति है और ये मैं सोच रहा हूं कि कृष्ण नियंत्रण में है, तो क्या होगा? डिपेंडेंस ऑन कृष्णा विल इंक्रीज। तो बताइए किसमें फायदा है? किसमें फायदा है? इसीलिए हाईएस्ट इंटेलिजेंस क्या है कि कृष्ण पर निर्भर है। तो कैसे निर्भरता बढ़ा सकते हैं? प्रभुपाद कह रहे हैं कैसे हम नरोत्तम बन सकते हैं। चाहे कोई घर में रह रहा है या आश्रम में रह रहा है, कहीं भी रह रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा हम श्रवण कीर्तन करें, कृष्ण की महिमा को सुने। कृष्ण कभी धोखा नहीं देते हैं। ये कहानियाँ नहीं हैं, ये वास्तविकता है। इसको कहानियाँ समझेंगे तो फिर तो माइथोलॉजी है। ये सच्चाई है, ये केस स्टडीज़ हैं, कैसे कैसे भक्तों ने व्यवहार किया, कृष्ण ने कैसे कैसे उनकी रक्षा की। तो इससे हमारा विश्वास बढ़ेगा, श्रद्धा बढ़ेगी। और भक्ति में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अगर कोई भक्ति को भौतिक लाभों के लिए करता है तो फिर भगवान बुद्धि प्रदान नहीं करते। फिर भगवान खाली चुपचाप वही देते रहते हैं, जो उसको चाहिए जे खत्म करो काम। लेकिन जो वास्तव में सिंसियरिटी ऑफ पर्पस, उसका पर्पस, उसका उद्देश्य शुद्ध है, तो भगवान पूरी बुद्धि प्रदान करते हैं। राइट। अब हम बहुत बुद्धि के स्तर पे तो समझ गए कि कृष्ण को ही नियंता मानना चाहिए, कृष्ण पर ही निर्भर रहना चाहिए। लेकिन अपने जीवन में इसको कैसे ला सकते हैं? तो 4 स्टेप्स हैं जो हमें मदद कर सकते हैं। सबसे पहले ये कि हम अपने जीवन में खुद देखें, फ्लैशबैक। हमारे जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आई होंगी, परेशानियाँ आई होंगी,
क्या उन सब परेशानियों में कृष्ण ने हमारी मदद की थी कि नहीं की थी? क्या मिलेगा आपको? हाँ मिलेगा, ना मिलेगा? और ये भी लिखेगा कि जो कठिनाइयाँ उस समय आई थी वो मेरी भक्ति के लिए अब सहायक है। उस समय समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, लेकिन बाद में मालूम चलता है ये भगवान की क्या योजना थी, मेरी भक्ति की बहुत बड़ी सहायक है। राइट? तो ये हमें हेल्प कर सकता है। ओके। दूसरा, हमारे जीवन में कोई ऐसे भक्त होने चाहिए जो कृष्ण में हमारी श्रद्धा को बढ़ाए, जो हमें उत्साहित करने शरणागत होने के लिए। हम अक्सर डरे रहते हैं, है ना? खासकर जो युवा होते हैं जिनको भी ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करना है, उनकी हालत वैसे होती है जैसे ओलंपिक्स में दिखाते हैं ना, वो बोर्ड होता है कूदने के लिए, वो कूदता ही रहता है, नीचे पानी में नहीं कूदता, अभी आया अभी आया अभी वो जंप नहीं मार पाता, डर रहता है ना। करना तो है लेकिन पता नहीं कब कब कब, तो कोई ना कोई पुश करने वाला चाहिए। प्रभु आप कर सकते हो ना, यू कैन डू इट। मेरे अपने जीवन में यही था, जब ज्वाइन करने वाला था, करूँ ना करूँ करूँ ना करूँ का, तो कुछ भक्त थे ऐसे, अरे आप कर सकते हो कर सकते हो, थोड़ा पुश किया तो हो गया। इसी प्रकार से हनुमान जी भूल गए थे कि मैं समुद्र लांघ सकता हूँ, जामवन ने याद दिलाया कर सकते हो, यस, तब हनुमान जी उत्साहपूर्वक गए। अर्जुन कंफ्यूज था, मैं नहीं लड़ाई लड़ सकता, कृष्ण ने उत्साह किया लड़ सकते हो, फिर लड़े। ध्रुव महाराज को सुनीति ने उत्साहित किया। प्रभुपाद जी को भक्ति सिद्धांत से ठाकुर ने कहा आप जाइए विदेश में और अंग्रेजी भाषा में प्रचार कीजिए। उसके बाद उनके बाद 3 बार इस सपने में आए भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज, आओ घर छोड़ के संन्यास लो, आओ आओ। वो डरते थे, नहीं 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 आओ 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 छोड़ा नहीं उनको, वो फिर संन्यास लिया। तो कोई ऐसा भक्त चाहिए जो हमें थोड़ा सा पुश करे, जो हमें विश्वास दिलाए आप शरणागति बढ़ा सकते हो, आप घबराओ मत, आप ये सेवा ले सकते हो। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा हमारे जीवन में ऐसे कोई भक्त हों जो हमें ये विश्वास दिलाए। तीसरा, खतरे मोलने, यू शुड टेक रिस्क। जब तक रिस्क नहीं लेंगे कृष्ण पे निर्भरता नहीं बढ़ेगी। अपने कंफर्ट जोन में रह के भक्ति करेंगे तो भक्ति नहीं है वास्तव में। भक्ति वो नहीं है कि जो मैं चाहता हूँ, जब चाहता हूँ, जैसा चाहता हूँ करूँगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। 16 माला कर ली है, प्रसाद पा रहा हूँ, दैट्स ऑल। मिनिमम रॉक बॉटम करूँगा, बस खत्म। आप मुझे हिला नहीं सकते यहाँ से, कर रहा हूँ ना नहीं, तो ये भक्ति शुरू नहीं होगी। भक्ति शुरू तब होती है जब अपने कंफर्ट जोन से हम बाहर आते हैं, तब हम कृपा पर निर्भर करते हैं। अपने अंदर ही रहेंगे बस फर्स्ट क्लास कोजी भक्ति, कोसी भक्ति नहीं। भक्ति मतलब कुछ संघर्ष। भक्ति का मतलब है माया से युद्ध तो होना चाहिए। युद्ध के टाइम में कोई व्यक्ति आराम से एयर कंडीशन में बैठा हुआ है तो युद्ध क्या हुआ? फिर कुछ चैलेंजेस, चुनौतियां स्वीकार कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हृदय से प्रार्थना तब निकलती है, तब अच्छा जप होता है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अगर बोले कैसा चल रहा है, बोले सब क्लास फर्स्ट क्लास चल रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है कुछ नहीं हो रहा। कुछ ना कुछ हमें रिस्क लेना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कितना बड़ा रिस्क लिया, आप सोचिए। 70 साल की उम्र में कोई व्यक्ति बाहर जाता है, 2 हार्ट अटैक्स, माय गॉड। और हार्ट अटैक्स होने के बाद जैसे ही अमेरिका में लैंड किए, कोई आम व्यक्ति होता सीधा हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाता है, करो जी एंजियोग्राफी करो, देखो कितनी ब्लॉकेज है। 2 हार्ट अटैक आने के बाद भी नहीं, सीधा प्रचार। सोचिए कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं प्रभुपाद जी। 1990 में परम पूजनीय शिवराम साई महाराज भक्ति वेदांत मैनर के जीबीसी थे। तो कुछ कोर्ट केस चल रहा था और हम वो कोर्ट केस हारने वाले थे। तो लंदन का बहुत बड़ा बैरिस्टर किया गया, उसकी वो बहुत बुरा था, अनुभवी था, 70 साल की उसकी उम्र थी। उसने बोला मैं आप लोगों के लिए केस लड़ूंगा, लेकिन मुझे मालूम तो हो आपकी फ़िलॉसफी क्या है, तो मुझे आप सारी अपनी किताबें दीजिए। तो भक्तों ने सारी किताबें भी दी और प्रभुपाद की बायोग्राफी भी दे दी। तो वकील व्यक्ति था, वो इंटेलिजेंट था, फटाफट सारी किताबें पढ़ ली, प्रभुपाद बायोग्राफी भी पढ़ ली। फिर आके बोलते हैं श्रीराम साई महाराज को, वंडरफुल, योर फिलॉसफी इज़ अमेजिंग, बट दिस पर्सन प्रभुपाद इज़ टू अमेजिंग।
तो शिवराम स्वामी महाराज बोले, यस वी नो दैट। नो यू डोंट नो, ही इज टू अमेजिंग। शिवराम महाराज, हम मालूम है, तभी तो हम यहाँ पे आए हैं। नो यू कांट अंडरस्टैंड, ही इज टू अमेजिंग। बोले कैसे? बिकॉज बोले मैं जानता हूँ 70 साल का व्यक्ति कैसा होता है। मेरी उम्र 70 साल की है। 70 साल की उम्र में ये व्यक्ति विदेश में जाके इतना प्रचार किया, टू अमेजिंग। ये प्रभुपाद जी कितना रिस्क लिया प्रभुपाद ने, सोची क्या जरूरत थी 70 साल की उम्र में इतना रिस्क लेना। और सफलता मिल ही नहीं रही। वहाँ जाके वैसे नहीं सब कुछ तैयार बैठा है, कोई सफलता नहीं मिल रही। पहला शिष्य डेविड बन जाएगा, इनको लगा। अपने गुरु भाई को चिट्ठी भी लिखी, डेविड बहुत अच्छा लड़का है, मेरा शिष्य बनने वाला है। उसी दिन वापस गए तो डेविड नशे में चोर प्रभुपाद पे आक्रमण कर दिया। रात के 1:30 बजे प्रभुपाद न्यूयॉर्क की ठंड में सड़क पे खड़े हैं। हमारे को ऐसी सेवा मिल जाएगी, बोले क्या गुरु महाराज मैं ही मिला था यहाँ पे मैंने क्या ऐसी गलती की, मुझे क्यों इतनी सजा मिल रही है। हिम्मत थी। देखिए, तो हम जब रिस्क लेंगे तो फिर हम निर्भर करेंगे। ओके, सो हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हैं, संकीर्तन में जाते हैं, कुछ ना कुछ रिस्क होता है। हमारा चौथा नियम है कि हमें जुआ नहीं खेलना। लेकिन जुआ खेलने का इस नियम को जो काउंटर करना है क्या है? टेकिंग रिस्क फॉर कृष्ण। बाहर के लोग जुए में रिस्क लेते हैं, लगा दे यार देखी जाएगी लेकिन हमने क्या करना है? संकीर्तन में रिस्क लेना है, एंड डिपेंडिंग फुली ऑन कृष्ण। ओके, प्रहलाद महाराज ने कितना बड़ा रिस्क लिया। हिरण्यकश्यप ने बोला क्या इस खंबे में भगवान है? तुरंत घबरा नहीं गया। हाँ बोलूँ ना बोलूँ क्या है पता, भगवान निकलेंगे ना निकले। बोले हैं क्यों नहीं है तुरंत निकले भगवान। ध्रुव महाराज ने रिस्क लिया। 5 साल के बालक ने बोला भगवान कहाँ मिलेंगे? वन में। चल पड़े वन में। कितना बड़ा रिस्क है। कोई जीपीएस नहीं था, कोई चैट जीपीटी नहीं था, कोई रास्ता बताएं कुछ करें, कुछ नहीं। क्या राजकुमार था, राजकुमार होकर इतना बड़ा रिस्क 5 साल की उम्र में निकल गया। सोचिए, दुखा हुआ उनके साथ? नहीं, दुखा नहीं हुआ। प्रभुपाद ने रिस्क लिया। तो इसीलिए तो निश्चित रूप से हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भगवान रक्षा करेंगे। रक्षित विश्वास। ओके, पहला क्या था? अपने खुद जीवन को देखें। दूसरा, कोई ऐसा भक्त हो जो हमारा उत्साह बढ़ाए, हमारे को श्रद्धा दे, आप कर सकते हैं। तीसरा है रिस्क लेना। आमीन। भक्ति रसायन सिंधु में साधना भक्ति के 64 अंगों में से एक अंग है टेकिंग रिस्क फॉर कृष्ण। ओके, इस संसार में हर बात में रिस्क लेते हैं। किसी ने विवाह भी करना तो रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है एक बड़ा उत्साह पूर्वक करता है, वो करना तो है ही। अब वो बोले यस करना ही है, विवाह तो करना ही है, तो रिस्क लेना ही पड़ेगा बिना से। इसी ढंग से भक्ति करनी है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। कंफर्ट जोन से बाहर नहीं। एक पुरुष को स्त्री से संबंध बनाने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, तो भगवान से संबंध बनाने के लिए रिस्क नहीं लेना पड़ेगा। और यहाँ तो वास्तव में रिस्क है पता नहीं क्या हो जाए। वहाँ तो पक्का है क्या मिलेगा? प्रेमी मिलेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और चौथा बहुत पावरफुल, जो हमारी सारी आसक्तियों को काट देगा। जात निर्वेदम हो जाएंगे हम, और उत्साह मिलेगा कि मैं भी नरोत्तम बन जाऊं। मृत्यु के बारे में सोचो। मृत्यु के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे हर चीज यथारूप दिखाई देगी। संसार की हर चीज अस्थायी है। क्यों लड़ाई झगड़ा हो रहा है? बेकार की बात नहीं। क्यों फालतू में छोटी बात को हम इतना बड़ा बनाया हुआ है। मृत्यु के समय सब खत्म। अभी हमें मृत्यु आ गई, क्या हो? स्टीव जॉब हर रोज वो कहते हैं, मैं अपने आप से पूछता हूँ कि आज मेरा आखिरी दिन है। अगर उत्तर नहीं मिलता तो कहते इसका मतलब कुछ गड़बड़ चल रही है, मुझे अपने आप को बदलना है। प्रभुपाद जी बोलते हैं एक लेक्चर में, हर रोज़ हम उठे मंगल आरती में जाएं तो भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि आज मैं जीवित हूँ, एक और दिन मिल गया सेवा के लिए। नेक्स्ट डे पता नहीं हो या ना हो हमारे पास। तो अगर मृत्यु के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो सब कुछ सेटल हो जाएगा और फिर हमारा सारा भय खत्म हो जाएगा। इसलिए असली बुद्धिमत्ता यही है, असली भक्ति यही है, असली परफेक्शन यही है कि हम अपने जीवन को इस ढंग से जिए कि हम कृष्ण और गुरु पर निर्भरता को बढ़ाएं। और यही असली सिंसेरिटी ऑफ पर्पस है।
और जितना ये करेंगे उतनी मात्रा में हमें कृपा प्राप्त होगी, और जितना इससे हम दूर भागेंगे, अपने आप पे निर्भर रहेंगे, अपने कौशल पे निर्भर रहेंगे, अपने रिसोर्सेज पर निर्भर रहेंगे, हम कृष्ण की कृपा से वंचित रहेंगे। ना वंचित रहेंगे कृष्ण की कृपा से, जो भक्ति का असली रोमांच है, जो आनंद है, उससे वंचित रहेंगे। प्रभुपाद ने करके दिखाया, प्रभुपाद के शिष्यों ने करके दिखाया, क्या क्या रिस्क नहीं लिए ना। पृथ्वी प्रभु बताते हैं वो कैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। ईस्ट जर्मनी जा रहे थे, वेस्ट जर्मनी से ईस्ट जर्मनी। ईस्ट जर्मनी कम्युनिस्ट कंट्री था, तो कैसे करते थे, स्मगलिंग करते थे भगवत गीता की। उन्होंने कैसे किया, जा रहे थे बॉर्डर के पास, पहुंचने लगे तो प्रसाद पा रहे थे, अपने साथ उनका एक और साथी था, तो प्रसाद पा रहे थे तो कुत्ता घूमने लगा आसपास। कुत्ता आसपास घूम रहा तो कुत्ते को चपाती डाली, फिर खाने लगे, फिर कुत्ता घूम रहा, फिर एक और चपाती डाली, और सोच रहे थे कैसे बॉर्डर क्रॉस करें, पकड़े जाएंगे। कुत्ता बार बार आ रहा था, तुरंत भगवान ने आइडिया दिया, कुत्ता काम करेगा। कुत्ते को प्रसाद खिला के अपनी वैन में कुत्ते को डाल दिया, बॉर्डर के पास पहुँचे। बॉर्डर में कुत्ता नहीं जा सकता। अरे कुत्ता क्यों नहीं जाएगा, मेरा कोई है ही नहीं जीवन में, ना पत्नी है ना बच्चे, ये कुत्ता ही मेरा सब कुछ है। और ये कुत्ता नहीं जा सकता, मैं कुत्ता जरूर जाएगा। बोले नहीं जा सकता, जाएगा। रोना धोना शुरू कर दिया पीछू मारा, कुत्ता जरूर जाएगा। बोले नहीं जा सकता। बोले ऊपर टॉप ऑफिसर को बुलाओ, बहुत बड़ा सीन हो गया, मैं कुत्ता जरूर ले जाऊँगा। बोले कुत्ता नहीं जाएगा, भाई कुत्ते को बाहर निकालो, चलो सी बाहर वैन को, चलो जाओ। कुत्ते को बाहर निकाल दिया, भगवत गीता जर्मनी। आप सोचो क्या सीन, क्या बुद्धि ली और कितना खतरा मोल लिया। बॉर्डर पर पहुंच रहे कैसे मैं स्मगलिंग करूंगा। सोचो तो सी, मतलब कि कितना रोमांच होगा। कितनी श्रद्धा बड़ी होगी प्रभुपाद पे, है ना, कितनी मतलब कि विशेष बात है। तो ऐसा नहीं करेंगे हम ऐसे खतरे मतलब कि लें, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क तो ले ही सकते हैं ना। तो वो रिस्क लें और देखें मृत्यु के परिप्रेक्ष्य में वस्तुओं को, अपने जीवन में देखें। तो इस प्रकार से हम सब नरोत्तम बन सकते हैं। लेकिन इसका आधार क्या है, श्रवण कीर्तन, शुद्ध भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन। ये ऐसे नहीं हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो बिम्सिकल हो जाएगा। शुद्ध भक्तों के संग में, चाहे हम ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं, वानप्रस्थ हैं, संन्यास हैं, जितना अच्छे ढंग से हम श्रवण कीर्तन करेंगे, उस पर मनन करेंगे, हमारी श्रद्धा बढ़ेगी और हमारे भक्ति करने का उद्देश्य स्पष्ट है, सिंसियर है, उतनी मात्रा में भगवान हमें प्रेरणा देंगे, उतनी मात्रा में भगवान हम पे कृपा करेंगे और उतनी मात्रा में हम भगवान पर अपनी निर्भरता बढ़ाते जाएंगे और भक्ति का रोमांच अनुभव करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है, टिप्पणी है? ठीक है, विष्णु तत्व वांट टू ऐड दिस वाज रिक्वायरमेंट, एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? purport में sincerity of purpose एक word है, so थोड़ा explain करेंगे महाराज जी हमारे? सिंसियरिटी ऑफ पर्पस, जैसे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवान की शरण में भौतिक लाभों के लिए जा रहे हैं, तो भगवान केवल उसको उतना ही प्रदान करेंगे। भगवान उसे ददामी बुद्धि योगम नहीं करेंगे, जब उसकी भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करते रहेंगे। उसको ये लगेगा ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है, उसको यही कृपा लगेगी। लेकिन जिसकी सिंसियरिटी ऑफ पर्पस है कि मुझे भगवान से प्रेम करना है, शुद्ध भक्ति करनी है, उसके साथ भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे। ठीक है ना, उसको भगवान इंस्ट्रक्शंस देंगे कैसे भक्ति में और आगे बढ़ सकते हैं, कैसे अपनी निर्भरता और बढ़ा सकते हैं। एक और प्रश्न, ये सॉल्यूशंस में आपने थोड़ा ऑप्शन दिया था कि कुछ रिस्क लीजिए, आप भगवान के लिए, तो कुछ उदाहरण दे सकते हैं महाराज जी आप, हमारे लाइफ में ऐसे कौन से रिस्क ले सकते हैं जो अभी के सिचुएशन में वी कैन फॉलो? या रिस्क मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। हर एक जीव का अपना अलग अलग कंफर्ट जोन होता है, कोकून बन जाते हैं अपनी कंडीशनिंग के कारण। तो अपनी कंडीशनिंग से बाहर निकल कुछ करना। कई वक्तों वो शर्माते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाने के लिए, उनके लिए यही बहुत बड़ा रिस्क होता है कि बाहर निकलूँ, है ना। शिव भक्त आते हैं, दाढ़ी मूछ कटाना बहुत बड़ा रिस्क लगता है
घर में धोती ये छोटे छोटे रिस्क भी हम लेते हैं, हम देखते करते हैं तो हम उसमें प्रोग्रेस करते हैं। फिर सेवा मिलती है, कोई ऐसी सेवा होती है जिसमें हम इतने यूज़ टू नहीं होते, नई सेवा लगती है, उसको लेने से हम कतराते हैं, तो उसको लें, ठीक है ना। प्रचार के लिए कहीं नए एरिया में जाना है और बोलेंगे पहले ये रिसोर्स आना चाहिए, वो रिसोर्स आना चाहिए, सब इकट्ठा हुआ तब शुरू करेंगे। अगर कुछ मिनिमम रिसोर्सेज भी उससे हम शुरू करते हैं, उसके बाद देखते हैं अपने आप स्वतः ही सब कुछ शुरू हो जाता है। और कुछ माइक दे दीजिए। यहाँ पे जब बेसिक देते हैं तो कभी कभी हमें पता रहती है तो सीमाएं उस हिसाब से नहीं पाते, तो उस सिचुएशन में फिर हमें निराशा हो जाती है। अगर सेवाएं जब रिस्क लेते हैं लोग तो गड़बड़ हो जाती है, फिर ना कभी कभी सिचुएशन ऐसे आ जाती है कि जहाँ पर पूरा अपना दे नहीं पाते, तो फिर बाद में निराशा भी हो जाती है कि ऐसा मतलब मैं चाह रहा था ऐसा हो जाए, सीमाएं उस स्तर पे हो जाए, पर वैसा सर नहीं आता तो बाद में वो भी। तो वही है ना, हम सेवा में सफलता विफलता वो देखते हैं कि हमारे हिसाब से परिणाम आ जाए। जैसे हम चर्चा की, असली सफलता वो नहीं कि मेरे हिसाब से परिणाम आए, असली सफलता है कि मेरी कृष्ण पर निर्भरता बढ़ रही है। और रिस्क कैसे लेना है, कहीं विम्सिकल रिस्क नहीं लेना है। जो हमारे सुपीरियर्स हैं, अधिकारी हैं, उनसे परामर्श करके लें। प्रभुपाद के पास भक्त है, प्रभुपाद हम सोच रहे हैं नाइट क्लब में जाके डिस्ट्रीब्यूशन करें। प्रभुपाद कह रहे, प्रभुपाद कहा जा सकते हो बट प्लीज़ मेक इट श्योर यू कम बैक। तो ऐसे भी खतरे मोल नहीं लेने कि हम ख़त्म ही हो जाए भक्ति से। तो बोले प्रभु जी आपने बताया था, मैं तो पूर्ण रूप से निर्भर था। तो ऐसे नहीं, तो पूछ के विम्सिकल नहीं लेना, कुछ भी कर दिया, ओके। वो रिस्क लें और ठीक है, परिणाम आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, इसमें लगे और उसको चेंज करते रहेंगे कैसे। प्रभुपाद ने क्यों रिस्क लिए कि गुरु महाराज का आदेश था उनके कि विदेशों में जाके करना है अंग्रेज़ी भाषा में प्रचार। तो प्रभुपाद फिर उसकी तैयारी कर रहे थे, बुक्स ऑन द बेसिस भागवतम को तैयार किया, फिर बाहर गए। तो प्रभुपाद के पास पूरे गुरु के आदेश थे, उन आदेशों के अनुसार प्रभुपाद रिस्क ले रहे थे। When we try to practice dependence, कई बार लंबे समय तक कुछ रिजल्ट नहीं आता, कुछ टर्न आउट में एजुकेशन बदलती हुई दिखती, तब पे थोड़ा सा हमारा पेशेंस खत्म होने लगता है या फिर कंटिन्यू नहीं कर पाते, तो उस टाइम पे वो पेशेंस को कैसे बनाए रखें? हाँ, तो वही हमारे जीवन में ऐसे भक्त होने चाहिए जो हमारा मार्गदर्शन करते रहे, है ना। परिणाम हो सकता है ठीक ना आ रहा हो, लेकिन हमारी डायरेक्शन ठीक है, दैट्स ओके। और हमें अपने कुछ स्किल सेट इम्प्रूव करने हैं, उस तरफ हम ध्यान दे सकते हैं। तो हम किसी के मार्गदर्शन में होंगे तो फिर हम भ्रमित नहीं होंगे। तो हो सकता है तुरंत सफलता ना मिले, कृष्ण की योजना कुछ और हो, तो किसी के मार्गदर्शन में रहेंगे तो अच्छा है। लेकिन मुख्य बात क्या है कि हमारा साथ साथ श्रवण कीर्तन चल रहा है और हम देख रहे हैं कृष्ण पर निर्भर हैं, तो दिक्कत नहीं है। लेकिन होता क्या है कि अधिकांशतः हम जो भी सफलता है वो बाहरी मापदंड से करते हैं। इतनी पुस्तकें बांटी गई, इतना धन एकत्रित हुआ, इतना प्रचार हुआ, इतनी प्रसाद बांटा गया, तो उसमें अगर हम कहीं नहीं खड़े उतरे तो हम लगता है कि हम विफल हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये इन रिज़ल्टों को अनाउंस भी किया जाएगा, इन रिज़ल्टों को मापा भी जाएगा, ये गलत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ये नहीं कर पा रहा तो वो अच्छा भक्त नहीं है। अगर प्रभुपाद के रिजल्ट अनाउंस किए जाते पहले 42 वर्षों में तो कुछ नहीं था, इसका मतलब प्रभुपाद कुछ भक्ति नहीं कर रहे थे, प्रभुपाद बहुत प्रयास कर रहे थे लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे थे, और बाद में एक साथ बहुत रिजल्ट आए। तो जैसे घनश्याम प्रभु थे, भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, वो हकला के बोलते थे, तो जब सब लोग बूट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते थे तो उनका स्कोर बहुत कम होता था, सबसे कम उनका स्कोर आता था। वो बहुत प्रयास करते थे, स्कोर होता ही नहीं था, लेकिन वो लगे रहे, हिम्मत नहीं हारी
और बाद में ऐसा हुआ कि वो टॉप मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटर बने। वो कहीं भी एक वैन को रोकते थे, थोड़ा वॉशरूम होके आता हूँ, एक भागवतम सेट निकाल के आए थे। ऐसा हो गया था उनका। तो हो सकता है सफलता शुरू में ना मिले, तो ये सफलता विफलता क्योंकि हम एक्सटर्नली इसी को रिकग्नाइज करते हैं, इसलिए हम डिप्रेस हो जाते हैं कि सबका नाम अनाउंस हो गया, मेरा नाम ही अनाउंस नहीं हुआ, मेरी कुछ कलेक्शन नहीं थी, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा। आप कर रहे हैं और सही प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है अभी सफलता नहीं आ रही, सो कॉल्ड सफलता, लेकिन असली सफलता हमारे सिंसियर प्रयास है, गुरु कृष्ण की कृपा पर निर्भर रहते वो प्रयास हो रहे हैं, वो असली सफलता है। और मार्गदर्शन में रहेंगे, हमारी दिशा ठीक होनी चाहिए बस। हरे कृष्ण। मैंने जैसे हम जब सेवाएं करते हैं तो सेवाओं में हम पूरा एंडेवर भी डालते हैं, प्रयास करते हैं अच्छे से, तो बहुत मुश्किल होता है समझ पाना कि हम जो एंडेवर डाल रहे हैं इसमें भगवान का डिपेंडेंस भी है या नहीं है, तो कैसे पहचान सकते हैं? या सो डिपेंडेंस का मतलब है कि ऐसे गुरु महाराज हमें यही समझाते थे, डिपेंडेंस का मतलब ये है, भगवान पर निर्भरता का मतलब ये है कि ऐसे कार्य करो कि सब कुछ आप पे निर्भर है, लेकिन परिणाम के लिए कृष्ण पर निर्भर है। इसका बड़ा अच्छा भी आपने प्रश्न पूछ लिया। डिपेंडेंस का मतलब ये नहीं आराम से बढ़िया प्रसाद पाया फिर सो गए, जो ठाकुर जी करेंगे ठीक करेंगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, वो नहीं है। पूरी मेहनत करनी है और सब कुछ जैसे मेरे प्रयासों पर निर्भर है, लेकिन परिणाम के लिए कृष्ण पर। परिणाम नहीं भी आए तो हम हतोत्साहित नहीं होंगे, फिर से प्रयास करते हैं। इंटरनली भी यस, इंटरनली मेरी कॉन्शियसनेस क्या है, मैं खुद देखूं। इंटरनली मेरी कॉन्शियसनेस ये नहीं कि भाई मैं तो कर सकता हूँ, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ऐसा है कि यह सेवा करते समय मेरी क्या कॉन्शियसनेस है। हर सेवा को प्रारंभ करने से मैं हृदय से गुरु और कृष्ण से प्रार्थना कर रहा हूँ, और मैं सेवा में कुछ सफलता मिल रही है, मैं कितना उनको धन्यवाद कर रहा हूँ, कितना मैं खुद क्रेडिट ले रहा हूँ, कितना गुरु और कृष्ण को क्रेडिट दे रहा हूँ। जहाँ हम ये भूल जाएंगे कि मैं कृपा पर निर्भर हूँ, वहाँ हमारा पतन शुरू हो जाता है। सफलता मिलती रह रही है लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं ही करने वाला हूँ, तो ये पतन का कारण बनता है। तो तथाकथित सफलता मिल रही है और हम सोच रहे हैं कि सब गुरु और कृष्ण उन्हीं को हैंडल कर रहे हैं, तो हमारा और कनेक्शन डीप होता जाएगा। तो ये इंटरनली हम देख सकते हैं कि मैं कितना क्रेडिट किसको दे रहा हूँ। हरे कृष्ण महाराज। मतलब जो चैतन्य महाप्रभु का आपने भाषण शेयर किया कि कुछ आप इकट्ठा करके चल तो नहीं रहे, तो इसको हम अपने लाइफ में अभी कैसे प्रैक्टिस करें? जैसे आपने बोला कि जर्नी प्रसाद है, और अभी गुरु जी को भी आपने बताया बोला कि प्रयास करना चाहिए, तो हम तो जर्नी प्रसाद लेके जाके प्रयास करते हैं अपनी ओर से। मैंने बोला बहुत हाई स्टैंडर्ड्स हैं, तो इसकी हम नकल नहीं मार सकते। वो तो महाप्रभु के पास्ट टाइम में देखते हैं कि गोविंद घोष ने हरी टक्की रख ली थी, महाप्रभु ने हरी टक्की खाई, अगले दिन फिर हरी टक्की मांगी तो उन्होंने तुरंत दे दी कि मैं आपका सेवा हूँ, कितनी अच्छी सेवा की। बोले कहाँ से ले? बोले कल वाली रखी है। बोले गेट आउट आप ब्रह्मचारी रहने लायक नहीं, आप गृहस्थाश्रम में चाहिए, आप संग्रह करते हैं। तो हमारे लिए अभी वो प्रैक्टिकल नहीं है, तो आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, लेकिन प्रिंसिपल ये ले सकते हैं कि कम से कम संग्रह करें। क्या प्रैक्टिस करें वो इस पोजीशन पे एलिवेट हो सके? कि अपनी आवश्यकताओं को कम से कम रखें, सिंप्लीफाई करें लाइफ को। आवश्यकताएं कम से कम रखेंगी तो संग्रह नहीं करना पड़ेगा, आवश्यकताएं ज़्यादा रखेंगे तो सब तामझाम लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, कब तक करें क्वेश्चन आंसर? फिनिश? ओके, लास्ट क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था कि हमको सेवा मिल जाए तो 3 तरह के एटीट्यूड रहते हैं। कुछ लोग होते हैं आदर्श वाले, सेवा ही मेरा है, उसमें डिपेंड ऑन नहीं कर रहा हूँ, और दूसरे जो सोचते हैं कि मैं क्वालिफाइड। तो आपने उसमें मैंने बोला कि ये ऐसा सोचना कि मैं क्वालिफाइड हूँ, ये फॉल्स का सोच है। मैं अनक्वालिफाइड हूँ, मैं सेवा नहीं करूँगा। अनक्वालिफाइड हूँ, मैं सेवा करूँगा डिपेंडिंग ऑन कृष्णाज मर्सी, दैट्स गुड। लेकिन मैं अनक्वालिफाइड हूँ इसलिए मैं सेवा नहीं करूँगा, मैं कर ही नहीं सकता ये सेवा, मेरी बस की नहीं है, तो वो फॉल्स है। पहला सोचा मैं आई एम टू क्वालिफाइड, मैं कर सकता हूँ। दूसरा सोचा मैं कर ही नहीं सकता हूँ, मैं करूँगा नहीं,
वो भी फॉल्स है। ठीक है, आप सब भक्तों का बहुत धन्यवाद। क्रम साहिब श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे।